حج کی تیاری اور روانگی کے لیے اہم ہدایات۔ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیں کیونکہ اب حج کا مشکل ترین مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اب تک آپ نے سعودی عرب میں جو وقت گزارا ہے وہ یقیناً وزارت مذہبی امور کے حسن انتظام کی وجہ سے بغیر کسی پریشانی اور مشکل کے گزرا ہوگا۔ اب آپ مشاعر مقدسہ کے لیے روانہ ہوں گے، جہاں دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں عازمین حج ایک جگہ جمع ہوں گے اور ان کو موسم کی شدت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب تک ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم بآسانی پیدل چل سکتے ہیں کیونکہ بس آپ کو حرم کے بالکل قریب اتارتی تھی اور بس سٹاپ سے حرم پیدل جانا کوئی سفر محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اب اگلے 5 دن آپ کے پاس آرام کے لیے بالکل وقت نہیں ہوگا۔ مینا اور عرفات کے مکاتب کے نقشے آپ کو اپنی بلڈنگ سے مل جاتے ہیں۔ یہ نقشے مشاعر میں بھی جگہ جگہ نصب کیے گئے ہیں۔ وزارت نے مکتب اور بلڈنگ کی تلاش کے لیے سمارٹ فونز کی موبائل ایپ پاک حج معاون بھی تیار کی ہے۔ ان سے خود بھی آگاہی حاصل کریں اور ساتھی حجاج کی بھی مدد کریں۔ مقدس مقامات یعنی حرم، مینا، مزدلفہ اور عرفات کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ خالی بوتلیں، ریپر اور کوڑا کرکٹ راستوں میں پھینکنے کی بجائے مخصوص کوڑا دان میں ڈالیں۔ حج کے 5 دن کی مناسبت سے اپنے ساتھ کم سے کم سامان رکھیں جو کہ کندھے پر لٹکانے والے بیگ میں بآسانی آ جائے، مثلاً احرام کی اضافی چادر، 1 جوڑا کپڑے اور جوتا، مسواک، فون چارجر، مزدلفہ کے لیے میٹ، چھوٹا تکیا وغیرہ۔ اب آپ اپنی ایئر کنڈیشن رہائشوں سے نکل کر مینا کے خیمہ بستی اور میدان عرفات منتقل ہوں گے، جہاں شدید گرمی کے موسم میں ہزاروں بسوں کے چلنے کی وجہ سے دن کے اوقات میں روم کولرز کے باوجود گرمی اور حبس بہت بڑھ جاتا ہے۔ مینا اور عرفات میں محدود جگہ کے باعث آپ کو نرم و گداز بستروں کی بجائے زمین پر بچھے 1.5 سے 2 فٹ چوڑے میٹرس پر وقت گزارنا ہوگا۔ اس کے لیے ذہنی طور پر خود کو تیار رکھیں۔ دوسرے حجاج کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئیں۔ ایام حج میں شدید رش کے باعث کھانا مشکل سے تاخیر سے ملنے کا اندیشہ ہوتا ہے، نیز کھانے کے ذائقے میں بھی فرق آ سکتا ہے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور احتیاطاً خشک خوراک مثلا نمکو، بسکٹ، چھوٹے کیک، چنے، جوس اور پانی وغیرہ اپنے ساتھ رکھیں۔ وضو اور رفع حاجت کی جگہوں پر حجاج کا شدید رش ہوتا ہے، ساتھ ہی حجاج کی آسانی کے لیے ان جگہوں پر صفائی اور پاکیزگی کا خاص خیال رکھیں۔ پانی کا غیر ضروری استعمال نہ کریں۔ ایام حج میں اپنی خوراک کم سے کم رکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادات میں گزرے۔ حج کے فرائض و واجبات۔ حج کے 3 فرائض ہیں، کسی ایک کے چھوٹ جانے سے حج نہیں ہوگا۔ حج کی نیت سے احرام باندھ کر تلبیہ پکارنا، 9 ذی الحج کو وقوف عرفات اور طواف زیارت۔ حج کے 6 واجبات ہیں، کسی واجب کے رہ جانے سے دم دینے سے تلافی ہو جائے گی۔ وقوف مزدلفہ، رمی، قربانی، حلق یا قصر، سعی، طواف وداع۔ مینا روانگی۔ حج 5 دنوں کا ہوتا ہے جو 8 ذی الحج سے شروع ہو کر 12 ذی الحج کو ختم ہوتا ہے۔ 8 ذی الحج یا 7 کی رات کو آپ اپنی رہائش سے احرام باندھ کر اور حج کی نیت کر کے مینا روانہ ہوں گے۔ مکتب کے ذمہ دار روانگی سے قبل عازمین حج کو مینا کارڈ بھی دیں گے جس پر خیمہ نمبر، مکتب اور دوسری معلومات درج ہوتی ہیں۔ دوران حج اس لاکٹ کو پہن کر رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ رہائش گاہ سے مینا روانگی کے لیے آپ کا مکتب بسوں کا انتظام کرتا ہے۔ عازمین حج کو بسوں پر مقررہ وقت سے کافی پہلے بھی سوار کروایا جا سکتا ہے اور سڑکوں پر شدید رش کے باعث طویل انتظار کی زحمت بھی اٹھانی پڑ سکتی ہے۔ عزیزیہ سے مینا کا فاصلہ 3 سے 5 کلومیٹر ہے۔ حجاج گروپ کی شکل میں 1 سے 1.5 گھنٹے میں بآسانی پیدل بھی مینا پہنچ سکتے ہیں۔ مینا۔ 8 ذی الحج کو آپ مینا میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کریں گے۔ صرف حج کے دنوں میں آباد ہونے والا خیموں کا شہر مینا 100 سے زائد مکاتب میں تقسیم ہے۔ مینا سے متصل حرم کی جانب جمرات یعنی 3 علامتی شیطان واقع ہیں۔
मिना से मस्जिद हराम तक मखसूस सुरंगों के जरिए पैदल रास्ता तकरीबन 8 किलोमीटर बनता है। हज के दिनों में प्राइवेट गाड़ियों के महंगे किराए और सड़कों पर शदीद रश के बायस मिना से हरम जाने और आने के लिए यह रास्ता सबसे मुनासिब है। मिना की दूसरी जानब मुज़दलिफ़ा और मैदान अरफात वाक़ हैं। ये बिलतरतीब तकरीबन 4 और 14 किलोमीटर दूरी पर हैं। रात मिना में ही क़याम होगा। 9 ज़िलहज की फजर मिना में अदा करके तुलुए आफताब के बाद अरफात की तरफ रवानगी होगी। मुशायर में आमदोरफ्त के तरीके। मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात के दरमियान एक जदीद और तेज़ रफ्तार मुशायर ट्रेन चलती है, लेकिन इसकी कुल गुंजाइश 3 लाख हुज्जाज तक महदूद है। नीज़ सऊदी तालीमात के मुताबिक ट्रेन टिकट सिर्फ स्टेशन के नज़दीकी मकातब को मिलता है। ट्रेन के जरिए जाने वाले आज़मीन हज के लिए 3 स्टेशन बनाए गए हैं। ट्रेन टिकट के मुताबिक अपने मखसूस स्टेशन से ही सवार हों। ज्यादातर हुज्जाज बसों के जरिए या पैदल सफर करते हैं। बसों की रवानगी में ताखीर हो सकती है। इस मौके पर नहायत सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें। बहुत ज़ईफ और माजूर अफराद पाकिस्तान से ही व्हील चेयर का बंदोबस्त कर लें और कम रश वाले औकात या मुतबादल जगहों यानी तवाफ, सई और रमी के लिए ऊपरी मंजिलों का इंतखाब करें। मुशायर ट्रेन पर सवार होने के लिए मखसूस लिफ्टों का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर मुफ्त हेल्पलाइन, मुआवनीन हुज्जाज या मकतब के नुमाइंदों से रहनुमाई हासिल करें। याद रखें, मुशायर ट्रेन के स्टेशन की तरफ जाने वाले रास्तों पर अमूमन बहुत ज्यादा रश होता है और ट्रेन पर सवार होने और उतरने के लिए काफी वक्त लग जाता है। अपने साथ पानी और छतरी लाजमी रखें। औरतों और ज़ईफों का खास ख्याल रखें और सवार होते वक्त उन्हें तरजीह दें। किसी भी हंगामी हालत में घबराहट का शिकार होने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता मुतासरा जगह से दूर हो जाए। मदद के लिए गले के लॉकेट पर दी गए इमरजेंसी फोन नंबर्स पर राब्ता करें। किसी भी सूरत में धक्कम पेल न करें, क्योंकि ऐसा करने से किसी कमजोर या ज़ईफ की जान भी जा सकती है। दूसरे आज़मीन हज का ख्याल रखें। याद रहे कि किसी मुसलमान की इज्जत और हुर्मत को अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबतुल्लाह की हुर्मत से बरतर करार दिया है। वकूफ़े अरफात। 9 ज़िलहज का वकूफ़ अरफा हज का रुकन आज़म। अगर ये रह जाए तो हज नहीं होता। ताहम गुरूब आफताब से पहले पहले मैदान अरफात में पहुंचने वाले का वकूफ हो जाता है। मस्जिद निमरा में मौजूद हुज्जाज खुतबा हज सुनने के बाद ज़ुहर और असर की नमाजें अमाम के पीछे इकट्ठी अदा करते हैं। शदीद रश के बायस ज्यादातर हुज्जाज मस्जिद निमरा नहीं पहुंच पाते और अपने खैमों में ही बाजमात नमाज अदा करते हैं और फरागत के बाद अपने रब के हजूर मगरब के वक्त तक मुनाजात करते हैं। यह दिन गुनाहों और खताओं की मुआफ़ी का दिन है। साथ ही साथ यह हश्र के मैदान में अल्लाह के सामने हाजिरी की याद दिलाने का जरिया भी है। गुरूब आफताब मुकम्मल होते ही तमाम हुज्जाज नमाज मगरिब पढ़े बगैर मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हो जाते हैं। याद रखें कि मैदान अरफात से वापसी पर शदीद रश और ख़ास तौर पर औरतों, ज़ईफ़ों और माजूरों की हिफाजत के पेश नज़र मुख्तलिफ मकातब के हुज्जाज की नक़्ल हरकत के लिए औकात और तरीक़ाकार पहले से तय कर लिए जाते हैं। हुज्जाज के लिए लाजिम है कि वो अपने ग्रुप के साथ और मकतब के नुमाइंदों की हिदायत के मुताबिक दिए गए वक्त पर बस या ट्रेन के जरिए मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाए। रश की वजह से यह फासला 3 से 5 घंटों में तय होता है। इस मौके पर सब्र तहम्मुल और ईसार कुर्बानी से काम लें। अरफात से मुज़दलिफ़ा का पैदल सफर बआसानी 3 घंटे में तय किया जा सकता है। वकूफ़े मुज़दलिफ़ा। मुज़दलिफ़ा पहुंचकर हुज्जाज मगरिब और इशा की नमाजें इकट्ठी अदा करने के बाद शैतानों को मारने के लिए कम अज कम 70 अदद कैंकरियां इकट्ठी करते हैं। याद रहे कि मुज़दलिफ़ा की रात मुश्किल और दुश्वार होती है। इस दौरान सख्त गर्मी, बेआरामी और सफर की सोबतों के पेश नज़र बाज हुज्जाज के लहजे में तलखी का अंसर गालिब आ जाता है। यही आजमाइश की घड़ी है। अपने रवैये में शाइस्तगी बरकरार रखें, बेजा शिकवे शिकायत से गुरेज करें और एक दूसरे को बुरा भला ना कहें। अगला दिन भी नहायत मुशक्कत तलब होगा, इसलिए मौका मिलने पर जरूर आराम कर लें। हुज्जाज 10 ज़िलहज की सुबह नमाज फजर अदा करने के बाद फिर दुआओं में मशगूल हो जाते हैं और वकूफ़े मुज़दलिफ़ा मुकम्मल करके तुलुए आफताब के बाद पैदल, बसों या ट्रेन के जरिए मिना की तरफ कूच करते हैं। मुज़दलिफ़ा से मिना का फासला 4 किलोमीटर है।
मिना पहुंचने के बाद फालतू सामान रखने या आराम की गरज से अपने खैमे में जा सकते हैं। रमी जुमरात। 10 जिलहज को हुज्जाज ने सिर्फ बड़े शैतान को 7 अदद कंकरियां मारनी है। आमतौर पर हुज्जाज जवाल के बाद या जुहर की नमाज के बाद कंकरियां मारने के लिए रवाना होते हैं, लेकिन रश के पेश नजर पहले भी रवाना हो सकते हैं। ज़ईफ मर्दो खवातीन की तरफ से इनके वकील भी कंकरियां मार सकते हैं। हुज्जाज को चाहिए कि जुमरात की तरफ जाने वाले रास्तों से आगाही हासिल करें, सिर्फ मकतब के मुकर्रर करदा वक्त पर और ग्रुप के साथ रवाना हो। गुम हो जाने की सूरत में रास्तों पर तैनात सब स्काफ और पाकिस्तानी परचम थामे मुआवनीन हुज्जाज या रजाकारों से रहनुमाई हासिल करें। कुर्बानी, खल्क, कसर। कंकरियां मारने के बाद हुज्जाज सुन्नत इब्राहिमी के तहत कुर्बानी करते हैं। लाखों हुज्जाज के लिए कुर्बानी खुद करना या कुर्बान गाह तक जाना बहुत दुश्वार होता है। जो हुज्जाज अपने हाथ से सऊदी महकमों के जरिए कुर्बानी के पैसे जमा करवाना चाहें, उनकी सहूलत के लिए हरम के नजदीक कुर्बानी के कूपन हासिल करने के लिए जगह जगह बूथ भी कायम है। किसी भी अनजान शख्स को कुर्बानी के लिए पैसे मत दें। बेहतर है कि हज दरखास्तों के साथ ही वजारत मजहबी अमूर या सऊदी महकमों के जरिए पैसे जमा करवाए जाएं। वो आपको कूपन पर कुर्बानी का वक्त भी बता देंगे। कुर्बानी 10 जिलहज या 11 जिलहज को भी होती है। हुज्जाज कराम को चाहिए कि जब तक कुर्बानी का वक्त न आ जाए उस वक्त तक हल्क या कसर न करवाए और हालत एहराम ही में रहें। कुर्बानी के बाद हुज्जाज जुमरात पर हरम के नजदीक दुकानों से हल्क या कसर करवाकर हालत एहराम से बाहर आ जाएं। तवाफ़े ज़ियारत। हुज्जाज कराम मसनून गुस्ल के बाद सादा कपड़े पहन लेते हैं और फिर हज के आखिरी फर्ज तवाफ़े ज़ियारत के लिए हरम रवाना होते हैं। सऊदी हुक्काम दौरान हज मिना में हर किस्म की ट्रैफिक का दाखिला बंद कर देते हैं। ज्यादातर हुज्जाज मिना से हरम आने जाने के लिए शेड और सुरंगों वाला पैदल रास्ता इख्तियार करते हैं, जो कि 4 किलोमीटर बनता है। ताहम मिना की हदूद से बाहर टैक्सी किराया पर मिल सकती है, लेकिन आम तौर पर 20 रियाल किराया लेने वाले ड्राइवर इन दिनों 200 रियाल तक तलब करते हैं। मुनासिब होगा कि कुछ हुज्जाज मिलकर टैक्सी करवा लें। हरम से वापसी पर भी टैक्सी आपको मिना के दाखिली रास्तों पर ही उतारेगी। वहां से अपने खैमे तक आपको पैदल आना पड़ेगा। तवाफ़े ज़ियारत के बाद हुज्जाज हज के फ़राइज़ से फारिग हो जाते हैं, लेकिन इनका क़याम अभी मिना में ही होगा। 11, 12 और 13 जिलहज की रमी। 11 जिलहज को तीनों शैतानों को 7-7 कंकरियां मारने के बाद हुज्जाज का क़याम मिना में होता है। अलबत्ता 12 जिलहज को दोबारा तीनों शैतानों को 7-7 कंकरियां मारने के बाद हुज्जाज या तो मकतब की हिदायत के मुताबिक गुरूब आफ्ताब से कबल मिना से निकलकर अपनी रहायशगाह वापस आ जाएंगे, या फिर अगले दिन यानी 13 जिलहज को भी रमी करने के बाद मिना से रवाना होंगे। मिना से वापस आने के बाद हज के तमाम मनासिक खत्म हो जाते हैं। तवाफ़े विदा। मक्का मुकरमा छोड़ने और अपने वतन रवाना होने से पहले हुज्जाज अपना आखिरी तवाफ यानी तवाफ़े विदा करते हैं, जो कि वाजिब है। ताहम तवाफ़े विदा हैज़ और नफास वाली खवातीन को माफ है। हुज्जाज नहायत बोझल दिल के साथ काबे का मंजर आखिरी बार आंखों में महफूज करते हैं और अल्लाह ताला से दोबारा हाजिरी की इल्तिजाओं के साथ काबे से रुखसत हो जाते हैं। ख़वातीन और हज़रात, हज का इतना अजर सवाब खंदा पेशानी के साथ मुश्किलात का मुकाबला करने की वजह से है। आपकी खिदमत में इन गुजारिशात को पेश करने का मकसद ये है कि आप ज़हनी तौर पर किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए खुद को तैयार रखें। दौरान हज सख्त गर्मी और शदीद मौसमी हालात में आपको 5 से 15 किलोमीटर पैदल सफ़र करना पड़ सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हुज्जाज कराम सदियों से ये करते आ रहे हैं और अल्लाह ताला आसानियां भी पैदा फरमाता है। अगर हम इन मुश्किलात के लिए पहले से तैयार हों तो हम